عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست کر لیتا ہوں کہ جن چیزوں کی جانب آپ کی توجہ دلائی جاتی ہیں اس پر آپ لوگ غور کریں، ادارے کو مضبوط کریں، لوگوں کو جوڑیں ادارے سے، یہ آپ کا ادارہ ہے۔ ناظرین گرامی آسٹریلیا کے ایک ٹیچر نے کلاس روم میں جس میں مسلم طالب علم بھی تھے اہانت آمیز تصویر دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، 2 دن قبل معاملہ پیش آیا تھا، لیکن اس وقت یہ سرخیاں بنا رہی ہے خبر۔ میلبورن کے ایک اسکول کی طالبہ سارہ عمار نے اس بات کی اطلاع دی اور کہا کہ استاد نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کلاس روم میں ایک تصویر دکھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی، جس پر میں نے اور دیگر مسلم طلبہ نے اعتراض جتایا۔ سارہ عمار کا کہنا تھا کہ کلاس روم میں استاد نے کہا کہ کس طرح مسلمان ایسے افراد کو جو اس قسم کے خاکے بناتے ہیں انہیں جان سے مار دیتے ہیں، اور پھر اس خاکے کو لوگوں کے سامنے دکھانے کی کوشش کی۔ سارہ عمار کے والد نے اسکول انتظامیہ سے اس استاد کو کام سے برخاست کر کے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کسی بھی طور پر برداشت نہیں کریں گے۔ کا یہ بھی کہنا تھا کہ چھٹی کے بعد جب میں اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے گیا تو میری بیٹی بہت زیادہ اداس اور غمگین تھی، اور اس طالبہ نے یہ ساری تفصیلات اس کو سنائیں۔ تو ناظرین گرامی کس طرح سے جو ہے کلاسز میں، کلاس روم سے اسکولوں میں اس وقت جو ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور نفرت پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس خبر سے، اور یہ آسٹریلیا کے میلبورن کی ایک اسکول سے آ رہی خبر ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ناظرین گرامی آئیے چلتے چلتے خوبصورت ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جو اس وقت مکۃ المکرمہ سے آ رہی ہے، بلکہ اب تک یہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں یہ ویڈیو ایک دوسرے کو شیئر کی جا رہی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں ہو یا مدینہ المنورہ، یہاں کے کبوتر بھی بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں، اور کس طرح ان کو دانہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جانے والے جانتے ہیں۔ اب ایک کبوتر مکۃ المکرمہ کے دالان میں سجدہ کرتے ہوئے بڑے خلوص کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہاں موجود معتمرین نے بھی جو ہے اس کی ویڈیو بنائی اور لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا، اور الگ الگ تبصرے اس وقت جاری ہیں۔ سوچا کہ ایک خوبصورت منظر آپ لوگوں کو بھی دکھایا جائے۔ ناظرین گرامی ایک اور ویڈیو آج سامنے آئی جس میں ایک ٹی وی رپورٹر کے ساتھ ہاتھی کا بچہ چھیڑخانی کرتا نظر آیا۔ دراصل بیبی ایلیفینٹ کے سلسلے میں جو ایک مخصوص تنظیم چلاتی ہے ٹرسٹ کے انڈر میں، وہاں پہ رپورٹنگ کے لیے پہنچے تھے اور رپورٹنگ کر رہے تھے ہاتھیوں کے درمیان میں۔ اس درمیان میں ایک ہاتھی کا بچہ اس کے ساتھ جو ہے عجیب و غریب حرکت کرنے لگا، تو یہ ویڈیو لوگوں کو اس قدر پسند آئی کہ اب ایک دوسرے کو شیئر کی جا رہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھیں، میں پھر لوٹتا ہوں۔ It is said charity begins at home, and for these young orphaned elephants, this charitable foundation is what they call home. It is the place where they discover and are taught life's lessons, experience love and grapple with loss. And even for millions of other species, home hangs in the balance. Human actions are destroying habitats,
decimating our entire ecosystem and disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species, and provide a home. नाज़रीन गिरामी, ऐसी एक वीडियो आई है शराबियों की, शराब के नशे की धुत में क्या कुछ करते हैं पता नहीं चलता। ये वीडियो मुकम्मल आपको दिखा नहीं सकती इसलिए कि इस अज़दे जो उसके गले में लिपट गया एक शराबी के, उसको निकालने में वो नीचे गिर रहा है और खींचातानी हो रही है। इस वजह से मुमकिन है कि जो है यूट्यूब इसको इजाज़त ना दे, लेकिन इसकी तफसीलात मैं आपको सुनाऊँ इस तस्वीर के हवाले से। नरेंद्र सिंह ने इस वीडियो को शेयर किया, बताया कि एक शख्स ने शराब के नशे में अज़दे को मछली समझ बैठा और उसके करीब जाकर के उसको पकड़ने की कोशिश की और उस पर काबू पाया, लेकिन फिर उस अज़दे ने जो है पूरी तरह से उसके गर्दन और चेहरे से लिपट गया। तो फिर उस अज़दे को उसकी गर्दन से निकालने के लिए किस तरह से जुस्तजू करनी पड़ी, किस तरह जो है आगे पीछे उसको नीचे गिरा करके निकालना पड़ा, ये सारी वीडियो में मौजूद है। आप जो है ट्रेडिंग न्यूज़ या ट्रेडिंग के एक अलग तरह से अगर मारेगी गूगल में तो वीडियो मिल जाएगी, इसलिए कि हम उम्र से महदूद करने के जो है डर से इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए तब्दीली मजहब के लिए अमेज़न पर फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। द ऑर्गेनाइज़र ने इल्ज़ाम लगाया है। जी हाँ, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर मुल्क में मजहब की तब्दीली के लिए फंडिंग का इल्ज़ाम लगाया गया है। ऑर्गेनाइज़र में एक मजमून ने अमेज़न पर मुल्क के शिमाली मशरक़ में तबादलों को फंड देने का इल्ज़ाम लगाया। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता में इस पर एक रिपोर्ट शाये की है। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन के उन्वान से कहानी में मैगजीन ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि अमेज़न के अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च नामी तंजीम के साथ माली ताल्लुकात हैं और अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च के बारे में मजमून में दावा किया गया कि उसने खित्ते में कन्वर्जन मॉडल चला रहा था। बहरहाल अमेज़न ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। मैगजीन ने कहा है कि ई कॉमर्स की बड़ी कंपनी अमेज़न अमेरिकी बैप्टिस्ट चर्च के जरिए चलाए जाने वाले क्रिश्चियन कन्वर्जन मॉडल को फंड फराहम कर रही है। आर्टिकल में मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्ज़ाम लगाया है। वैकफ नाज़रीन, अमेज़न कंपनी कितनी बड़ी आप जानते हैं और जो ऑर्गेनाइज़र है वो पूरी तरह से जो है एक तर्जुमान है आरएसएस का, ये पर्चा आप उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसमें ये सब इल्ज़ामात लगाए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि कर्नाटक में मस्जिद नुमा नज़र आने वाले बस स्टैंड को गिराए जाने की बीजेपी की जानिब से धमकी मिली है। जी हाँ, कर्नाटक के एक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया है कि वो एक बस स्टैंड को मुनहदिम कर देंगे क्योंकि ये मस्जिद जैसा नजर आता है। प्रताप सिम्हा ये झूठ फैलाने में, सोशल मीडिया में मनगढ़ंत कहानियां सुनाने में, बिलखुसूस टीपू सुल्तान और मुसलमानों को लेकर के बकवास करने में और नफरत फैलाने में, यूट्यूब में हो या फेसबुक में, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सुबह से शाम तक इसका यही काम होता है। प्रताप सिम्हा ने जो मैसूरू और कोडगु लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, कहा कि वो खुद इस बस स्टैंड को बुलडोज करके मुनहदिम कर देंगे जो मैसूर ओटी सड़क पर वाक़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर देखा इस बस स्टैंड की 2 गुंबदें हैं, दरमियान में एक बड़ी है, उसके बाजू एक छोटी गुंबद, ये मस्जिद ही है। मैंने इंजीनियर से कहा है 3-4 दिन का वक्त है, अगर ऐसा ना किया गया तो मैं खुद जेसीबी लाकर उसे मुनहदिम कर दूंगा। प्रताप सिम्हा ने पहले भी फिरकावाराना तनाज़ात पैदा किए हैं, कर्नाटक में लगातार करता ही रहता है। हाल ही में जब रियासत में हिजाब तनाज़ा चल रहा था तो उसने हिजाब पोश तालिबा से कहा था कि वो मदरसों में तालीम हासिल करें, जिसके लिए हुकूमत ने अलहदा फंड्स मुख्तस किए हैं, स्कूल जाना बंद करें। बैकअप नाज़रीन गिरामी, अब तो इस तरह के लीडरों की, इस तरह धमकी देने वाले बीजेपी लीडरान की अब कमी नहीं है। मुसलमानों को जो कोई भी गाली देता है बीजेपी में वो हीरो बन जाता है, इस बात से आप वाकिफ हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के जिला बापटला में हफ्ते की शाम एक हवाई जहाज जिसे ट्रक पर मुंतकिल किया जा रहा था सड़क के अंडरपास में फंस गया और तब से जो है ये पिस्ता हाउस का अब जो नया होटल बनने वाला है वो सुर्खियों में आया है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियोस के वायरल होने के बाद ये वाक़या मंजर आम पर आया। मुख्तलिफ मकामात से आवाम की बड़ी तादाद फंसे जहाज के मकाम पहुंच गई ताकि इस जहाज के पास खड़े होकर सेल्फी बना सके। दरअसल पिस्ता हाउस एक मशहूर होटल चेन है, आप जानते हैं, हैदराबाद से इसका ताल्लुक है। वो अब एक नया एरोप्लेन रेस्टोरेंट्स के क़याम के लिए एक इस्तेमाल शुदा तैयारा खरीदा था केरला से। इस जहाज को ट्रेलर ऑफ ट्रक के जरिए कोच्चि से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि जिला बापटल्ला में वाक़या पेश आया। जहाज हफ्ते की शाम कोरसी पाड़ू के मकाम पर सड़क अंडरपास में फंस गया, जिसकी वजह से इस मकाम पर
चंद घंटों तक ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ। नाज़रीन गिरामी, अब आगे जाकर के जो है पिस्ता हाउस के नाम से ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट चलेगा हैदराबाद में, और ये पिस्ता हाउस जो वैसे भी पूरे भारत में मुख्तलिफ रियासतों में और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मशहूर है, अब जो है एरोप्लेन के ज़रिए से लोगों को एक अलग ही तरह का तर्ज होटल बना करके लोगों को अपनी जानिब खींचने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए खस्ता हालत में पड़े इस एरोप्लेन को पिस्ता हाउस के ज़रिए से जो है ख़रीदा गया था। अब देखना है कि जो है कब ये एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट खुलता है। वह नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के कलबुर्गी से खबर आ रही है कि एक और बीजेपी लीडर की बहुत ही जालिमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया है। ये कलबुर्गी ज़िले के सेडम नामी इलाके में पेश आया, शहर में पेश आया है। मरने वाले बीजेपी लीडर की शनाख्त मल्लिकार्जुन मत्याला के तौर पर की गई, जिनकी उम्र 64 साल बताई गई है। अब ये सियासी दुश्मनी की वजह से इस पर हमला हुआ या किसी और चीज़ों की वजह से पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने चाकू के ज़रिए से इसका वार करके कत्ल किया वो मौके से फरार हो चुके हैं। सेडम के इलाके में मकतूल यानी जिनका कत्ल हुआ है वो विष्णु नामे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान चला रहे थे और अपनी दुकान में आराम कर रहे थे कि इस दरमियान में जो इन पर हमला किया गया था शरपसंदों की जानिब से, हमलावरों की जानिब से। पुलिस अब मामला दर्ज करके इस वाक़े की छानबीन कर रही है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली हुकूमत में स्कूली तालीम के वज़ीर BC नागेश एक बार फिर तालीम के भगवाकरण के मामले को लेकर तनाज़ात के मरकज़ में है। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान कहा कि रियासत में 7,500 से ज़्यादा नए क्लासरूम को भगवा रंग में रंगा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को रियासत के गदग जिले में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए स्कूली तालीम के वज़ीर ने कहा कि विवेका स्कीम के तहत बनाए जाने वाले नए क्लासरूम एक जैसे होंगे और उन पर भगवा रंग लगाया जाएगा। ताहम उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि भगवा रंग की तजवीज़ आर्किटेक्ट्स ने पेश की थी और ये किसी नज़रिए की पैरवी नहीं। इस कदम को माहिरीन तालीम और अपोजिशन ने यकसा तौर पर तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन गिरामी, आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त भगवा कलर कहाँ कहाँ तक जो है यूपी में तो ऐसा कि बस अड्डे भी नहीं छोड़े गए, हर जगह भगवा रंग को लाकर के एक मखसूस जो है रंग के ज़रिए से मखसूस मजहब की पहचान बताने की कोशिशें पहले से हो रही हैं। अब कर्नाटक में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हो रही है कि आर्किटेक्ट्स के ज़रिए से यानी इंजीनियर्स के ज़रिए से ये जो है मशवरा मिला है, जबकि भगवा रंग किस चीज़ की जानिब इशारा करता है और क्या कुछ है ये दुनिया भी जानती है और भारत के वासी भी जानते हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,